આપણા જે આજના ચોથા મુખ્ય અતિથિ વિશેષ અને સૌથી નાની ઉંમરના અતિથિ વિશેષ, બરોબર. હવે જ્યારે હું આ સ્પીચ તૈયાર કરતો હતો એટલે મારી પાસે એમનો આખો જ કારકિર્દીનો બધો જ બાયોડેટા મારી પાસે આવ્યો. એટલે એટલું બધું અંદર મનોમંથન કરવું પડ્યું, કારણ કે એટલું બધું ડીપ છે એમનું બધું જ બાયોડેટા અને એમની કર્મભૂમિ. હવે મેં કીધું કે જો હું જ આટલું ડીપલી સમજવા માટે મારે આટલો સમય જતો હોય તો તમને સમજાવવામાં કેટલો બધો ટાઈમ જાય. એટલે મેં આખો બાયોડેટાનો સાર કાઢ્યો અને સરસ મજાના સ્વરૂપે હું તમારી સામે પ્રેઝન્ટ કરું છું. આપણી ચોથી અતિથિ વિશેષ કુમારી આર્યા ચાવડા, એનું કારકિર્દી શું છે એ હું તમને કહું છું. તમને ગર્વ થશે કે આપણી ગુજરાતની દીકરી છે, બરોબર. જે ઉંમરે આપણે પર્યાવરણની પાપા પગલી ભરતા થયા એ ઉંમરે તો આર્યા પર્યાવરણના સંરક્ષણ મુદ્દે અધ્યાયો લખી ચૂકી છે. જે ઉંમરે આપણને એવો ખ્યાલ આવે કે હું જે કરું છું એને કલા કહી શકાય, એ ઉંમરે તે કલા અને સાહિત્યના વિષયમાં ઊંડાઈમાં ઉતરીને આવી છે. જે ઉંમરે આપણી લેખનની મૌલિકતા પરીક્ષામાં ગપ્પા મારવા સુધી સીમિત હોય છે, એ ઉંમરે આર્યા પોતાની અનેક પુસ્તકો લખી ચૂકી છે. જે ઉંમરે આપણને ખબર પડે કે સમાજ કોને કહેવાય, એ ઉંમરે આર્યા સમાજમાં ઉતરીને સમાજ સુધારણાના કાર્યક્રમોને ક્રિયાન્વિત કરી રહી છે. જે ઉંમરે આપણને ખબર પડે કે ફ્રાન્સ એક દેશ છે, એની રાજધાની પેરિસ છે અને એમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સંઘની યુનેસ્કો સંસ્થાનું હેડક્વાર્ટર આવેલું છે. આપણને આ માહિતી જ્યાં સુધી મળે ત્યાં સુધી તો આર્યા 2 વખત ત્યાં ભારતનું રિપ્રેઝન્ટેશન કરી આવી છે. અને તમારા મારા જેવા કે જે સમાજ સશક્તિકરણ, બાળ સશક્તિકરણ, સ્ત્રી સશક્તિકરણના મુદ્દાઓ ચોપડીમાં ખંગારતા હતા, એ મુદ્દાઓને આર્યા જમીન પર ક્રિયાન્વિત કરે છે આટલી નાની ઉંમરે. જે ઉંમરે વારસો આપણે ચોપડીમાં ભણતા હતા, એ ઉંમરે એ ગુજરાતનો અને ભારતનો વારસો લઈને દેશ વિદેશમાં પહોંચી ગઈ છે. અને જે ઉંમરે આપણને શાળામાંથી 1 મેડલ મળે તો આપણા ઘરે પેંડા વેચાતા હોય, બરોબર. એ ઉંમરે આર્યા અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડો ઝૂકીને ભારતને ગૌરવ અપાવવાનું કામ એણે કર્યું છે. અને છેલ્લે કે જે બાળક તરીકેની કુમળી ઉંમરની પાછળ આપણે મોજ મસ્તીમાં જે સમય કાઢીએ છીએ, તો એ ઉંમરે આર્યા એક લક્ષ્ય લઈને ચાલે છે કે વી as a children have a unique chance to change the course and put the world on the track where we don't just talk about the change. અહીંયા આપણે ટ્રેક પર નથી આવતા, આ વિશ્વને ટ્રેક પર લાવવાની વાત આટલી કુમળી ઉંમરે આપણી આર્યા કરી રહી છે. એક વખત જબરજસ્ત તાળીઓથી આર્યાનું સ્વાગત થઈ જાય. પ્લીઝ વેલકમ આર્યા. અને જે આપણા કાર્યક્રમનો મોટિવ છે કે ચરિત્ર નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ, તો જો બહુ વધારે થિયરિટિકલ બાબતોમાં ના જવું હોય અને સમજવું હોય કે ચરિત્ર નિર્માણથી રાષ્ટ્ર નિર્માણ કઈ રીતે થાય, તો આ પ્રત્યક્ષ ઉદાહરણ તમારી સામે ચાલીને આવી રહ્યું છે. પ્લીઝ વેલકમ આર્યા ચાવડા. આજના આપણા સૌથી નાની વયના પણ સિદ્ધિઓમાં સૌથી ઉપર એવા અતિથિ વિશેષ આર્યા ચાવડા આપણી યુનિવર્સિટીમાં આવ્યા છે. પહેલાં તો હું તમને એ કહી દઉં કે આપણી યુનિવર્સિટી પહેલી નથી, 75 આગલી યુનિવર્સિટીઓમાં પણ સંબોધન આપીને આવ્યા છે અને 250 કોલેજોમાં પોતાનું વક્તવ્ય આપીને આવ્યા છે. અને ત્યારબાદ આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે. તો આપણે વિચારી શકીએ કે આ આપણા માટે કેટલી ગૌરવની વાત છે. હું ભાઈ શ્રી સુરજભાઈ મુંજાણીને વિનંતી કરીશ કે કુમારી આર્યા ચાવડાને એક પુસ્તક ભેટ અર્પણ કરીને તેમનું સ્વાગત કરે. હવે એક વાત હું તમને એ કહું કે જે આર્યા અહીંયા બેઠી છે એના વ્યક્તિત્વની ગુંજ દેશ વિદેશમાં છે અને તમારી તાળીઓ હોલની બહાર જતી નથી. જોરથી તાળી પાડો યાર, શું કરો છો? તો આર્યા ચાવડા
પોતાનું વક્તવ્ય લઈને આવી રહી છે અને જેનો વિષય છે સસ્ટેનેબલ લિવિંગ એન્ડ કેરિંગ લાઈફ. પ્લીઝ વેલકમ. सभी को नमस्ते. क्या सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? और क्या मैं थोड़ा प्रेजेंटेशन बड़ा करूं कि सब फर्स्ट फ्लोर से देख पा रहे हैं? ओके. सबसे पहले मैं कड़ी सर्व विश्वविद्यालय को थैंक करना चाहती हूँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए. मेरा नाम आर्या चावड़ा है और मैं 14 साल की हूँ. मैं एक ऑथर, इलस्ट्रेटर, स्पीकर, हेरिटेज और इन्वायरमेंट क्रूसेडर हूँ. और आज मैं खाली मेरी जर्नी नहीं पर मैं इन्वायरमेंट के बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ. मैंने अभी तक 10 पुस्तकें लिखी है और मेरी सभी बुक्स यूनेस्को ने पैट्रोनेज और पब्लिश करी है. मेरी सभी किताबों यूनेस्को डिजिटल लाइब्रेरी में पब्लिश्ड है एंड दे आर रेड बाय रीडर्स ऑफ ऑल एज वर्ल्ड वाइड. किताब लिखने के साथ साथ मैं अवेयरनेस भी स्प्रेड करती हूँ मेरे 2 कैंपेन्स के द्वारा, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज और सस्टेनेबल लिविंग केयरिंग फॉर क्लाइमेट. मैंने अभी तक ये 2 कैंपेन्स पर 100 से ज़्यादा प्रेजेंटेशंस ले लिए हैं 3 साल में. मेरे सबसे 2 मेजर प्रेजेंटेशंस थे नेशनल एनवायरनमेंट यूथ फोरम और नेशनल एनवायरनमेंट यूथ पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हुआ था. मेरी सभी बुक्स, आर्ट्स और प्रेजेंटेशन के प्रोसीड्स डोनेट होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड कैंसर पेशेंट्स. अब मैं मेरे किताबों के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ. ये है मेरी पहली 2 किताबें जो मैंने अहमदाबाद के हेरिटेज प्लेसेस पर लिखी थी. मैंने मेरी किताब अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज लिखी थी जब मैं 8 साल की थी और मैंने इस किताब में अहमदाबाद के टैंजिबल हेरिटेज जो है अहमदाबाद के मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स के बारे में नरेटिव पोएम्स के बारे में लिखी थी. इसके साथ में मैंने अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज का सीक्वल इनटैंजिबल अहमदाबाद लिखा जिसमें मैंने अहमदाबाद के इनटैंजिबल साइट्स जो है अहमदाबाद का कल्चर, अहमदाबाद के फेस्टिवल्स, उसके बारे में मैंने एक किताब लिखी. हेरिटेज के बारे में लिखने के साथ साथ मुझे इंस्पिरेशन मिला हमारे पर्यावरण पर लिखने के लिए. इसलिए मैंने पर्यावरण पर 3 किताबें लिखी है, सीड्स ऑफ होप, सीड्स टू सो और कमिंग टुगेदर. मैंने मेरी किताब सीड्स ऑफ होप लिखी थी ताकि मैं अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं कि हम सबको एक दूसरे को इंडिविजुअल अप्रोच से कम्युनिटी अप्रोच पर जाकर अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए. 2 साल बाद में मैंने मेरी किताब सीड्स टू सो लिखी जिसमें मैंने ये एम्फसाइज किया कि पर्यावरण पर अवेयरनेस स्प्रेड करने के साथ साथ हमें एक्शन भी करना होगा हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए. क्योंकि अगर हम खाली अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे और एक्शन नहीं करेंगे तो हमारा अवेयरनेस अधूरा रह जाएगा. रिसेंटली मैंने मेरी लेटेस्ट बुक कमिंग टुगेदर लिखी जिसमें मैंने एम्फसाइज किया मेरा मी टू वी मूवमेंट, जिसमें खाली हम इंडिविजुअली नहीं पर अगर हम सब साथ में मिलकर दोनों अवेयरनेस और एक्शन करेंगे तो हमारे सभी एक्शंस मल्टीप्लाई होकर हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे. मेरे हेरिटेज और हमारे पर्यावरण के साथ साथ मैंने कई दूसरे टॉपिक्स पर भी किताबें लिखी है, जैसे कि पीस एंड नॉन वायलेंस, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन और चिल्ड्रंस राइट्स एंड ड्यूटीज.
जैसे कि आपको पता है, मैंने मेरी किताब अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज और इनटैंजिबल अहमदाबाद के हेरिटेज साइट्स पर लिखी थी। रिसेंटली मुझे एक इंस्पिरेशन आया कि मुझे खाली अहमदाबाद के नहीं पर पूरे इंडिया के हेरिटेज के साइट्स पर लिखना चाहिए। इसलिए मैंने मेरी 2 बुक्स मैग्निफिसेंट मार्वल्स और इनटैंजिबल लेगेसीज लिखी। मैंने मेरी किताब मैग्निफिसेंट मार्वल्स में ये एम्फेसाइज किया अबाउट द 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया, और मैंने मेरी किताब इनटैंजिबल लेगेसीज में इंडिया के 14 यूनेस्को कल्चरल एलिमेंट्स के बारे में एम्फेसाइज किया। मैंने अभी तक मेरे बुक्स और कैंपेन्स के बारे में बात करी। अब हम बढ़ते हैं मेरे कैंपेन सस्टेनेबल लिविंग केयरिंग फॉर क्लाइमेट के साथ। उसके पहले मैं आप सबको ये पूछना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है, व्हाट इज सस्टेनेबल लिविंग? जब हम ह्यूमंस इक्विलिब्रियम और बैलेंस में रहते हैं हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ, तब उसे सस्टेनेबल लिविंग कहते हैं। जैसे कि आप मेरे ड्राइंग में देख रहे हैं, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएं और उनका ख्याल रखें, हम विंड पावर और सोलर पावर का इस्तेमाल करें, तो हम सस्टेनेबल लिविंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब मैं आप सबको ये पूछना चाहूँगी कि आज के सिनेरियो में क्या हम सच्ची में सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिस कर रहे हैं? नो। रिसेंट न्यूज़ ये बताता है कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर एंटोनियो गुटेरेस ने ये कहा कि द एरा ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज़ एंडेड एंड द एरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग हैज़ स्टार्टेड। मैंने इस करंट मैप में बताया है कि कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग टेम्परेचर से कितने सारे कंट्रीज अफेक्ट हो रहे हैं। क्या आप सब मैप देख सकते हैं? ओके। तो जैसे कि ये करंट मैप में बताया है, यूनाइटेड स्टेट्स में वार्निंग इशू हुआ था ओवर एक्सेसिव हीट एंड ह्यूमिडिटी। मेक्सिको में टेम्परेचर्स ने 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एक्सीड किया। यूनाइटेड किंगडम में ऑफिशियल टेम्परेचर जो होता है वो 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, बट इस जून यूनाइटेड किंगडम्स का एवरेज टेम्परेचर 15.8 डिग्री सेल्सियस था। स्पेन में टेम्परेचर्स ने 44 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा राइज किया है। पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारी डेथ्स हुई हीट स्ट्रोक के कारण। चाइना में टेम्परेचर्स 40 डिग्री सेल्सियस एक्सीड हुए। जैसे कि आप ये करंट मैप से देख रहे हैं, अब हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं पर हम ग्लोबल बॉइलिंग फेस कर रहे हैं। अब मैं आपको हमारा करंट सिनेरियो बताना चाहती हूँ। 30 साल पहले कैलिफोर्निया का एक लेक ओरोविल ऐसा दिखता था, जैसे कि आप लेफ्ट के पिक्चर में देख सकते हैं। पर 30 साल बाद में उसका करंट सिनेरियो ये है कि लेक ओरोविल एक लेक ही नहीं बचा। ये ग्लोबल वार्मिंग एंड ड्रॉपिंग वाटर लेवल्स के कारण है। ये एक कंपैरिजन पिक्चर है आर्टिक सी के आइस का। 1984 में आर्टिक सी का आइस ओवर 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स था, पर करीबन 30 साल बाद में 2012 में खाली आधा अमाउंट ऑफ आइस ही बाकी है और आधा मेल्ट हो गया ग्लोबल वार्मिंग के कारण। जैसे कि आप देख सकते हैं 2012 में खाली 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स आर्टिक आइस का बाकी है। ये एक पोर्टेज ग्लेशियर जो अलास्का में है उसका पिक्चर है। 1914 में पोर्टेज ग्लेशियर एक ग्लेशियर था, बट करीबन 1 सेंचुरी बाद आप देख सकते हैं कि पोर्टेज ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग टेम्परेचर्स के कारण पूरा ग्लेशियर मेल्ट होकर एक लेक फॉर्म हो गया है।
ये है एरल सी का पिक्चर। एरल सी रशिया के पास में है, एशिया में। एरल सी का जो इंसिडेंट हुआ वो इस सेंचुरी का सबसे बड़ा डिज़ास्टर था। 1989 में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब रशिया ने डिसाइड करा कि उन्हें एरल सी का इरिगेशन का पाथ बदलना होगा ताकि उनके क्रॉप्स को ज़्यादा पानी मिले। बट खाली उनने एक रूट चेंज किया एरल सी के पानी का, और 1989 से आप अगर करंट सिनेरियो देखते हैं वर्ल्ड मैप पर, तो अब एरल सी एक सी ही नहीं बचा, वो पूरा सी डिसअपियर हो गया। This is a picture of the gateway to hell in Turkmenistan. In 1971, many scientists of Turkmenistan dug a hole so that they could get fossil fuels from inside. But because of an accidental fire that hasn't stopped till now, all the fossil fuels which were present inside started getting burned. अभी तक वो फायर बंद नहीं हुआ, और आप सोचो कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इंक्रीज हुआ होगा और कितने सारे फॉसिल फ्यूल्स के गैस वेस्ट हुए होंगे एक एक्सीडेंटल फायर के वजह से, जो अभी भी बंद नहीं हुआ। ये है एक उत्तराखंड के फ्लड के बाद का ग्लेशियर ब्लीच। 6 फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक फ्लड हुआ था। इस फ्लड के कारण एक माउंटेन पर ग्लेशियर ब्लीच हुआ था और पूरा जो ग्लेशियर का फ्लो था वो बदल गया। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, बस एक दिन के स्पैन में एक पूरे माउंटेन का ग्लेशियर का पाथ बदल गया। ये है इंडिया गेट का पिक्चर जो न्यू दिल्ली में है। 2000 में अगर हम सेम डिस्टेंस में 2000 में पिक्चर क्लिक करते तो इंडिया गेट वैसा दिखता, पर 2016 में पोल्यूशन के कारण एयर विजिबिलिटी इतना कम हो गया है और इतना हैवी पोल्यूशन हो गया है और इतना स्मॉग आ गया है दूसरे स्टेट्स में से कि अगर हम सेम डिस्टेंस से वापस वही पिक्चर क्लिक करें तो ये हमें डिफरेंस मिलता है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है इंडिया में? An extremely wet monsoon that occurs once in 100 years may occur once in every 10 years by the end of this century. इसका मतलब अब हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्लड्स फेस करेंगे। Kolkata and Mumbai are vulnerable to extreme river floods, intense tropical cyclones, rising sea levels and high temperatures. There is a significant reduction in crop yields because of rising temperatures and erratic rainfall. Some 63 million people may no longer be able to meet their caloric demand in India. अब मैंने आप सब के लिए एक टेबल बनाया है ताकि हम हमारे करंट सिनेरियो को एनालाइज कर सकें। हम चालू करते हैं राइजिंग टेम्परेचर से। 1981 में रिकॉर्ड किया गया था कि 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर एवरी डिकेड इंक्रीज हो रहा है। करंट ईयर्स में 2022 में वापस हमने राइजिंग टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किया और हमें ये पता चला कि वो 0.32 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा 1.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। अगले 10 साल में ये प्रेडिक्ट किया गया है कि टेम्परेचर्स और भी ज़्यादा 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगी। ओवर पॉपुलेशन। 1981 में वर्ल्ड सेंसस ने 4.5 बिलियन पीपल रिकॉर्ड किए थे एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। 2022 में वापस वर्ल्ड सेंसस रिकॉर्ड किया गया एंड हमें पता चला कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.8 to 8 बिलियन पीपल। 2030 में हमने प्रिडिक्ट किया है कि वर्ल्ड सेंसस 10 बिलियन पीपल होगा। ग्लोबल वार्मिंग।
In the year 1900s, it was recorded that half the amount of global warming which is taking place presently would have taken place in 1900s. In the current years, the global warming over the last 50 years is nearly twice than that of the last 100 years. अगले 10 साल में पेनफुली स्लो हरिकेन्स, डेडली हीट और सिटीज विदाउट वाटर का प्रेडिक्शन किया गया है. Deforestation. 17% of the Amazon rainforest had been destroyed in 1900s. It is reported that deforestation rose by 21% in 2020, which is the loss of the size of a country named Israel. It is predicted that more than 230 million hectares of forest will disappear by 2050 if no action is taken regarding deforestation. Rising sea levels. Sea level has risen 6 inches since 2000. Sea level rise over the last few years is 3.6 mm per year. The sea level rise is projected to be 8 to 10 inches by 2030. IPBES के according, more than 1 million species of plants and animals extinction के risk पर है, and many of these plants and animal species are predicted to be put in extinction just within a few decades. ये रिपोर्ट कहता है कि 40% एम्फीबियन स्पीशीज, 33% रीफ कोरल्स और 1/3 मैराइन मैमल से भी ज़्यादा स्पीशीज थ्रेटेंड है फॉर एक्सटिंक्शन. ये एक चार्ट है जो बताता है कितने नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज राइज हो रहे हैं. डार्क ब्लू मैमल्स को रिप्रेजेंट करता है, रेड रेप्टाइल्स को रिप्रेजेंट करता है, ब्लू बर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, श्यान फिश को रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन इंसेक्ट्स को प्रेजेंट करता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इस ग्राफ में 2007 से लेकर 2020 का कंपैरिजन बताया है. आप देख सकते हैं कि 2007 में 7,851 नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज रेड लिस्ट पर थे, पर 2020 में मोर देन 15,000 स्पीशीज आर एट द रेड लिस्ट फॉर एक्सटिंक्शन. Rising sea levels, drifting ice continents, melting glaciers, huge amounts of pollution, immense use and waste of single-used plastic, reduced oxygen levels, droughts, perishing forests and grasslands, depleting groundwater, extreme fires and extinction of millions of animal species. Global warming, rising temperatures and human displacement have all caused a serious impact on the face of our Mother Earth. हमने अभी तक endangered species की बात करी और उसके साथ साथ में ग्लोबल वार्मिंग और राइजिंग टेम्परेचर्स की भी बात करी. अब हम बढ़ते हैं पोल्यूशन की तरफ. व्हाट इज एयर पोल्यूशन? जब हम हमारे सराउंडिंग एयर को टॉक्सिक सब्सटेंसेस और केमिकल्स के साथ कंटेमिनेट करते हैं जो खाली हमारे लिए हार्मफुल नहीं पर दूसरे एनिमल्स, प्लांट्स और अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, तब उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं. ये पाई चार्ट बताता है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. Almost 50%, which is 45% of air pollution is caused by industries. 17% is caused by waste burning. 14% is caused by transport and vehicles. And the other 15% is caused by diesel generator due to transportation and dust and construction and domestic cooking. एयर पोल्यूशन दूसरे पौधों, एनिमल्स, अर्थ के एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल है, पर वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए भी हार्मफुल है. जैसे कि एयर पोल्यूशन से हमारा स्किन एजिंग बढ़ता है,
हमें लंग डिजीज जैसे कि एस्थमा, लंग कैंसर, लंग डेवलपिंग डिजीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ब्रेन डेवलपिंग डिजीज, मेंटल हेल्थ डिजीज, हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, लो बर्थ वेट, इस सब एयर पोल्यूशन के हेल्थ हार्म्स है। अब हम बढ़ते हैं लैंड पोल्यूशन की तरफ। जब हम हमारे अर्थ के लैंड सरफेसेस को डिमोलिट करते हैं मिसयूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज की वजह से, तब उसे लैंड पोल्यूशन कहते हैं। लैंड पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब हम बढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन की तरफ। जब हम हमारे वाटर सोर्सेस को कंटामिनेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस, प्लास्टिक और केमिकल से, तब उसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन हमारे मराइन मैमल्स और उनके इकोसिस्टम्स को हार्म कर सकता है, क्योंकि वो मराइन मैमल्स इनटेक कर सकते हैं केमिकल को या प्लास्टिक पर फीड कर सकते हैं। इसके साथ में जब हम केमिकल्स, इनडिस्पोजेबल वेस्ट, प्लास्टिक हम वाटर में डालते हैं तो वो वाटर को और उसके सोर्सेस को कंटामिनेट करता है। ये एक दूसरा टेबल है जो बताता है ट्रीटेड एंड अनट्रीटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडियन सिटीज 1978 से लेकर 2009 से। आप देख सकते हैं कंपैरिजन में कि ऑरेंज बताता है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर और ब्लू बताता है ट्रीटेड वेस्ट वाटर। 1978 से लेकर 2009 आप देख सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ वेस्ट वाटर अनट्रीटेड रह जाता है और कितना अमाउंट ऑफ वाटर ट्रीटेड रहता है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं वाटर पोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट्स है। क्या आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक, केमिकल्स जो पानी में नहीं डिजॉल्व होंगे, टॉक्सिक केमिकल्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर हम हमारे पानी में डालें तो पानी हमारा ऐसा पोल्यूट हो जाएगा। ये सब देखकर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग टेम्परेचर्स, राइजिंग सी लेवल्स, मैं आपसे ये सब पूछना चाहती हूँ ताकि आप ये पॉन्डर कर पाए। When will we come to our senses quick enough to protect our environment? What can we really do to save our planet from this climate catastrophe? Do we really have those capabilities to stop our harmful actions? And if we really do have those capabilities, how far will we go to save our Mother Earth? जैसे कि मैं मेरे बुक्स और कैंपेन्स में कोट करती हूँ, इट इज़ टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू रिट्रोस्पेक्ट अबाउट वेयर आवर प्रायोरिटीज लाई। वी एज द यूथ नीड टू इग्नाइट आवर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अवेयर सिटीजन्स एंड कम टुगेदर टू मेक अ चेंज फॉर अ बेटर फ्यूचर। मैं मेरे कैंपेन सस्टेनेबल लिविंग केयरिंग फॉर क्लाइमेट के द्वारा ये बिलीव करती हूँ कि हमें यूथ को एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहिए ताकि हम आगे बढ़कर हमारे पर्यावरण को बचा पाए। जैसे कि मैंने पहले बताया, मेरी किताब सीड्स ऑफ होप में मैंने ये एम्फसाइज किया है कि हम यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। मैंने मेरी किताब सीड्स टू सो में ये एम्फसाइज किया है कि अवेयरनेस के साथ साथ हमें एक्शन भी करना होगा ताकि हमारा अवेयरनेस अधूरा ना रह जाए और ताकि हम हमारे पर्यावरण को हमारे एक्शंस के थ्रू बचा पाए। मेरे ये बुक्स के द्वारा और मेरे कैंपेन्स के द्वारा मैं ये बिलीव करती हूँ कि हम हमारे पर्यावरण को तभी बचा पाएंगे अगर हम ये करेंगे। अगर हम खाली अवेयरनेस नहीं पर एक्शन भी करेंगे और हम साथ में मिलकर करेंगे तो हम हमारे पर्यावरण को बचा पाएंगे। इसलिए हमें A+A मूवमेंट जो है अवेयरनेस प्लस एक्शन करना होगा।
उसके साथ में मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि वी कैन क्रिएट अ चेंज बाय स्टार्टिंग फ्रॉम मी टू वी. Me is an individual approach, while we is a community approach. इसलिए मैं ये बिलीव करती हूँ कि अगर हम एक इंडिविजुअल अप्रोच से कम्युनिटी अप्रोच की तरफ जाए और हम मी टू वी मूवमेंट करें, जहाँ पर सब लोग वॉलंटियर करें हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए, तो हम एक ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं साथ में. मेरे बुक सीड्स टू सो में मैंने 6 R's एम्फसाइज किए हैं. ये है रिफ्लेक्ट, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस और रीसाइकल. आई रिपीट, रिफ्लेक्ट, रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रीपर्पस और रीसाइकल. अब मैं थोड़े वेज शेयर करना चाहूँगी जैसे हम ये 6 R's यूज़ कर सकें. हमें हमारे हार्मफुल एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए. हमें सिंगल यूज्ड प्लास्टिक्स और स्टायरोफोम के कप्स को रिफ्यूज़ करना चाहिए. हमें कार्बन एमिशंस, हमारा कार्बन फुटप्रिंट और फ्यूल वेस्टेज को रिड्यूस करना चाहिए. हमें पेपर्स, कैन्स, प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, इन सब को रीयूज़ करना चाहिए. हमें यूज्ड प्लास्टिक्स और रैपर्स को रीपर्पस करना चाहिए और हमें प्लास्टिक और कंटेनर्स को रिसाइकल करना चाहिए. सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन. हम हमारे विसिनिटी में हमारा पोल्यूशन लेवल कैसे कम कर सकते हैं? अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें या वॉक करें या साइकिल में जाए तो हम हमारा पोल्यूशन कम कर सकते हैं. इसके साथ में हम एनर्जी सेव कर लाइट्स, फैंस स्विच ऑफ कर सकते हैं जब उनकी ज़रूरत ना हो. इससे हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा. अगर हम हमारे ऑफिस में और घर पर नॉन टॉक्सिक केमिकल्स का इस्तेमाल करें ताकि वो नॉन टॉक्सिक केमिकल्स हमारे वाटरवेज में ना जाए, तो हम हमारा वाटर पोल्यूशन लेवल कम कर सकते हैं. वाटर पोल्यूशन और पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल भी कम करना पड़ेगा, स्पेशली सिंगल यूज्ड प्लास्टिक. Along with that, we should also consume less non-vegetarian food and choose sustainable practices. अब मैं मेरे किताब सीड्स टू सो में से थोड़े वेज शेयर करना चाहूँगी जिससे हम सस्टेनेबल लिविंग कर सकते हैं. अगर हम हमारे गेम कंट्रोलर्स में रिचार्जेबल बैटरीज यूज़ करें, हम इको फ्रेंडली लेड फ्री होम कलर्स का इस्तेमाल करें, हम फ्रीज़र के डोर्स शट टाइटली करें और जब हमें लाइट की ज़रूरत ना हो तब हम लाइट को बंद करें, अगर हम बर्ड हाउसेस इंस्टॉल करें और हमारे बायोडाइवर्सिटी को एक सेफ इन्वायरमेंट दें, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाकर उनका ख्याल भी रखें और अगर हम ऑफन कारपूलिंग का प्रैक्टिस करें तो हम साथ में सस्टेनेबल लिविंग का प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके साथ में हमें नॉन वेजिटेरियन फूड को अवॉइड करना चाहिए और प्लांट बेस्ड डाइट को एनकरेज करना चाहिए. हमें प्लास्टिक स्ट्रॉज और इनफैक्ट एवरी यूजेज ऑफ सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को हमें अवॉइड करना चाहिए. हमें लोकल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाय करना चाहिए इंपोर्टेड के बदले. हमें डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए और रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को लेना चाहिए. इसके साथ में जब हम शॉपिंग करने जाए, स्पेशली ग्रॉसरी शॉपिंग, हमें हमारा ओन बैग कैरी करना चाहिए. हमें प्लास्टिक, एनवेलप्स, कैन्स, बैग्स, फोल्डर्स ये सब रीयूज़ करना चाहिए. पर्यावरण को बचाने के लिए मैं मेरे बुक्स और कैंपेन्स के द्वारा सस्टेनेबल लिविंग, केयरिंग फॉर क्लाइमेट के लिए प्रयत्न करती हूँ. और आज के प्रोग्राम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप भी प्रतिज्ञा लें ताकि हम सब हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए साथ में मिल सके. तो चलो हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं.
आज से हम सिंगल यूज प्लास्टिक का यूसेज कम करेंगे और रिफ्यूज करेंगे। आज से हम बेसिक 3 Rs रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का इस्तेमाल करेंगे। आज से हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाएंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे। आज से हम हमारा कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को प्रेफर करेंगे। आज से हम हमारे विसिनिटी का पानी बचाएंगे और दूसरों को भी इनकरेज करेंगे पानी बचाने के लिए। आज से हम हमारा मीट कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे। आज से हम हमारा सराउंडिंग बायोडाइवर्सिटी का अच्छा ख्याल रखेंगे। ये स्टेप्स के द्वारा हम सस्टेनेबल लिविंग का प्रैक्टिस करेंगे। और इससे ही हम मी टू वी मूवमेंट का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहाँ पर इंडिविजुअल अप्रोच से कम्युनिटी अप्रोच के साथ में हम हमारा पर्यावरण बचा सकते हैं कमिंग टुगेदर के थ्रू। थैंक यू सो मच एवरीवन। અનેક અનેક ધન્યવાદ આર્યા ચાવડા। એક જ મિનિટ તમે અહીંયા જ રહેજો। આર્યા ચાવડાને અમારા સર્વનેતૃત્વ કાર્યક્રમ તરફથી એક સરસ મજાનું સ્મૃતિ ચિહ્ન આપવા માટે હું મંચ પર આમંત્રિત કરવા માગીશ પૂર્વ અધ્યાપક વૈદેહી સુથાર મેડમ। વૈદેહી સુથાર મેડમ, પ્લીઝ વેલકમ। આપણા ગુજરાતના ગૌરવ અને ભારતના ગૌરવને સન્માનિત કરે, પ્લીઝ મેમ। આર્યા ચાવડાના ફાધરની સ્પેશિયલ રિક્વેસ્ટના અનુસંધાને 1 મિનિટનો વિડીયો તેમણે આપણી સામે પ્રસ્તુત કરવો છે। આપણે એ જોઈશું 1 મિનિટનો વિડીયો।
કુમારી આર્યા ચાવડાના આ પ્રેઝન્ટેશન ઉપર અને તેમની કારકિર્દીને લગતા અન્ય કોઈ પણ સવાલ જો તમારે પૂછવા હોય તો તમે એને પૂછી શકો છો, કારણ કે બહુ મોંઘા મહેમાન છે, ફરી તમને નહીં મળે. જે પણ ક્વેશ્ચન હોય તમે પૂછી શકો છો. अगर आपको मुझे कोई पर्यावरण पर या मेरे काम पर कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हो. જે કોઈ પણ હાથ ઊંચો કરે, વોલેન્ટિયર્સ મિત્રોને વિનંતી તેમના સુધી માઇક પહોંચતું કરે. Hello. Hello. My name is Chavda Dhaval. Can I ask in Gujarati or Hindi? ओके, आप गुजराती में पूछ सकते हैं. જેમ કે તમે આમાં જે સ્લાઇડ બતાવી હતી એમાં આવ્યું હતું કે નોનવેજનો જેમ હોય ઓછો ઉપયોગ કરવો, બરાબર? તો હું પોતે વેજીટેરિયન છું, મારે એવું કાંઈ નથી, પણ મને ખાલી મનમાં એવો વિચાર આવે છે કે જો બધા જશે, જો બધા ફૂડમાં વેજ બાજુ જશે તો બધું જેટલું પણ વેજ છે એ આખા દેશને પૂરું થશે કે નહીં થાય? तो मैं ये सवाल वापस एक बार रिपीट कर लेती हूँ ताकि सब लोग को सुनाई दे. उन्हें पूछा कि अगर हम नॉन वेज से वेज कंजम्पशन पर जाए तो हमारे पास जो भी वेजिटेरियन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है हमारा, क्या वो सबके लिए सफाइज होगा कि नहीं? तो इसका उत्तर मेरे पास ये है कि हमें इस सबसे पहले इसलिए हमारा नॉन वेजिटेरियन का कंजम्पशन कम करना होगा क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए कितने सारे लाइफ स्टॉक एनिमल्स को मारा डाला जा सकता है. जैसे कि अगर कोई यहाँ पर चिकन खाता है तो पहले चिकन को हम जो होता है वो 5-10 साल उसको हम खाना देते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर उसको बड़ा करते हैं, फिर देन वी ईट द चिकन. सो अगर हम कंजम्पशन नॉन वेजिटेरियन का कम कर रहे हैं तो उसका मतलब कि जो चिकन को वो खाना जा रहा है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो है वो हम फॉर एग्जांपल 5% ऑफ द फूड दैट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दैट इज देयर इज गोइंग फॉर द लाइफ स्टॉक एनिमल्स. तो इसलिए अगर हम नॉन वेजिटेरियन कंजम्पशन कम करें तो ऑटोमेटिकली द अमाउंट ऑफ चिकन्स दैट आर देयर दैट वी ईट, उनका जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होता है दैट वी ईट, दैट वुड गो फॉर अस. So we would have the vegetarian that, and even they would get to have the livestock. So that's my answer. और कोई पूछना चाहता है? मुझे इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? तो जब मैं 7 साल की थी तब 2017 में अहमदाबाद इंस्क्राइब हुआ था इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी. तब मैं बहुत क्यूरियस हो गई थी कि मेरी खुद की सिटी को इंस्क्राइब क्यों किया बाय यूनेस्को. इसलिए तब से मैं और मेरे पेरेंट्स हर संडे एक हेरिटेज साइट ऑफ अहमदाबाद विज़िट करने लगे. वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लगा और मैंने हेरिटेज साइट्स ड्रॉ करने लगे और मैंने हेरिटेज साइट्स पर ज़्यादा इंटरेस्ट ग्रो हुआ मेरा. उसके बाद में मुझे इंस्पिरेशन मिला कि ताकि हम हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए अवेयरनेस स्प्रेड कर सके और हमारे हेरिटेज पर इंफॉर्मेशन भी स्प्रेड कर सके, हम एक बुक लिख सकते हैं. इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरी पहली किताब अहमदाबाद माई सिटी माई हेरिटेज लिखूं, जिसमें मैंने अहमदाबाद के हेरिटेज साइट्स पर एक नरेटिव पोएम के फॉर्म में लिखी थी जब मैं 8 साल की थी. मैंने हेरिटेज पर लिखना चालू किया और फिर पीस और नॉन वायलेंस पर भी लिखना चालू किया. फिर 2020 में जब अमेज़न वाइल्ड फायर्स और ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स हुए और फिर कोविड पैंडेमिक भी हुआ, तब मुझे ऐसा लगा कि हमें हमारे पास्ट को बचाने के लिए पहले हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी तो बचाना होगा.
इसलिए मैंने सोचा कि हमें हमारे हेरिटेज को बचाने के लिए पहले हमें पर्यावरण को बचाना होगा। इसलिए मैंने पर्यावरण पर भी किताब लिखना चालू करी, सीड्स ऑफ होप और सीड्स टू सो। और फिर मैंने किताब लिखने के साथ साथ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ के साथ इंटरैक्ट कर सकूं और कनेक्ट हो सकूं मेरे मैसेज के साथ में, इसलिए मैंने कैंपेन्स चालू करी स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में, ताकि फिर मैं प्रेजेंटेशंस ले सकूं हेरिटेज और इन्वायरमेंट पर। हेलो हेलो मेरा एक सवाल। હેલો હા એમાં પૂછું ચાલશે? ચાલશે। ઓકે કયો પ્લાન્ટ એવો છે કે જેને પ્લાન્ટેશન એક તો ઇઝી છે, પ્લસ ઘણા લાંબા ટાઈમ સુધી એ રહેશે, જેને તમે લાઈક એક વખત વાવી દીધું પછી એને વારે મેન્ટેનન્સની ના પડે, જેમ કે અત્યારે ચાલે છે, એને એક વખત ઉગાડી દો પછી। हेलो क्या आप Hello. आपका क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं अगर हिंदी में पॉसिबल हो तो? ओके ऐसा कौन सा प्लांट है जिसे एक बार हमने प्लांटेशन कर दिया फिर रेगुलर बेस पे डे टू डे उसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती? जैसे कि रोड साइड होता है तो वहाँ पे हम बहुत सारे प्लांट एक साथ प्लांटेशन करते हैं, फिर क्या है उसकी सार संभाल हम इजीली नहीं कर पाते, तो आपके मुताबिक कौन सा ऐसा प्लांट है जिसे हमें प्लांटेशन करना चाहिए? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम प्लांट को प्लांट कर रहे हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने उसको प्लांट किया तो हमें उसका रेगुलर केयर करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके साथ में जो भी हमारे क्रॉप्स है जो बिकॉज ऑफ द रेन अगर हम बाहर रखें, नॉट इनसाइड क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर देयर ऑन द सॉइल आउटसाइड, वो बिकॉज ऑफ द रेन इफ़ दे कैन ग्रो वी कैन यूज़ दोज क्रॉप्स। बट स्टिल मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम क्रॉप्स अगर इफ़ वी आर प्लांटिंग देम तो वी कैन टेक रेगुलर केयर, ट्रीट देम विथ नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एंड वाटर रेगुलरली। સમયની મર્યાદામાં રહીને આ કાર્યક્રમ આગળ વધારવાનો છે, એટલે છેલ્લો એક પ્રશ્ન હવે આપણે લઈશું। ભ્રાંતવ સર, या આપણે સૌ શાંતિ જાળવીશું। આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે, ત્યારબાદ હેલો એવરીવન, ગુડ આફ્ટરનૂન, કેમ છો? મજામાં? આર્યા એક નાની દીકરી છે, તમારા સાથની જરૂર છે। એણે એક પ્રયત્ન ચાલુ કર્યો છે ને એ પ્રયત્નને તમે બધાએ મળીને હાથ આપશો તો દેટ ઇઝ ધ રિયલ પર્પઝ ઓફ હર ફોર હર નેક્સ્ટ બુક ઓર અપકમિંગ બુક કમિંગ ટુગેધર। સો આર્યામાં એને ટીવી નથી દેખાડ્યું મેં નાનપણથી, એને મોબાઈલથી દૂર રાખ્યું છે। પછી એનામાં જે અંદર ઇન્ટરનલ કેલિબર હતું કે આ એક ફૂલ આપ્યો છે, આ એક વસ્તુ આપી છે, એને તું જો ને તારા મગજમાં શું એનો વિચાર આવે છે તું એ લખ। તો ધીસ ઇઝ હાઉ ધ ફર્સ્ટ સીડ ઓફ હોપ વોઝ બોર્ન ઇન હર બાય ગિવિંગ હર દેટ તું તારી પોતાની ઇન્સ્પિરેશન છે, તારામાં જે આવડ છે તું એને ઉજાગર કર। જરૂરી નથી આની આવડ બીજામાં હોય, તો વોટ એવર વી કન્ટેન ઇન આર સોલ ઇઝ વોટ વી કેન રીપ ઇન ધ ફ્યુચર, દેટ્સ વોટ આઈ બિલીવ। એટલે દરેકમાં એ તાકાત છે, દરેકમાં એ જુદી જુદી તાકાત છે। આપણી તાકાત આપણે ઓળખવી જોઈએ ને આપણું સ્વનું ને આપણા દેશનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ। થેન્ક યુ। સૌને જણાવવા માગીશ, આર્યા ચાવડાના પેરેન્ટ્સ હિતેશ ચાવડા અને ઋષિકા ચાવડા, આપણે એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ થઈ જાય।